Hello, my dear friends. I Ajay Kom Misra. Welcome to all of you in my YouTube channel अर्ज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं स्टैंडर्ड 10th के लिए एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, और उसमें एक पार्ट बॉन्डिंग का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बॉन्डिंग डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके साथ, और आपको बॉन्डिंग सीखना है कि हाउ द कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर and what is chemical bonding and how many types of chemical bonding and how the different compounds or molecules attach to or combine to or binding to each other. Now try to understand. Now मेरे प्यारे बच्चों, chemical bonding, तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है? तो व्हेन कंपाउंड्स और व्हेन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जब कोई एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और बाइंड करके वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग व्हेन एन एटम्स कंबाइंड by which electrostatic forces and forms compounds and molecules. Compound and molecules that forces that binding is known as chemical bonding. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 10th। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड क्लास 10th है और चैप्टर मेटल नॉन मेटल का कुछ बेसिक्स हमें बताना है। मैं इसलिए उसी बेसिक्स को फॉलो कर रहा हूं सो दैट कि वे बच्चे जो क्लास स्टैंडर्ड 10th के हैं वो इसको ग्रैस्प कर सकें, एंड नाउ दे कैन गो थ्रू द रीडिंग द बुक एंड दे कैन अंडरस्टैंड इजिली। सो प्लीज टेक केयर हियर। Types of chemical, there are many types of chemical bonding, but here just I will discuss 1, 2 and 3 only. At the standard of class 10th, now we will discuss only 3 types of bonding here. First, ionic bond, or you can say electrostatic bond or ionic bond, covalent bond,
थर्ड कोआयोनिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Now my dear students, ionic bond. What is ionic bond? What is covalent bond and what is coionic bond? मेरे प्यारे बच्चों, ionic bond those compounds or molecules which is formed or the atoms are combined by complete transfer of the electron, that is called ionic bond, or you can say ionic bond. My dear friends, now one by one we will discuss here. देखिए how it is formed. Electrovalent bond. First we will discuss here. Ionic, and it is also known as electrovalent bond. आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? तो दोज विच molecules or compound now those which molecules or compound which is formed by complete transfer of electrons, that compound is known as, or that molecules are known as ionic compound, and the binding force and bond is known as ionic bond. जिस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और आयोनिक कंपाउंड बनाने में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो बाइंडिंग फोर्स लगता है, उस बाइंडिंग फोर्स से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए उसका एग्जाम्पल होगा NaCl, KCl, CaCl2, AlCl3. These are the examples of ionic compound, and in such compounds the types of bonding, electrovalent bond or ionic bond is present here. How? Just I am going to explain using some examples. Now electrovalent bond. The bond which is formed by complete transfer of electron, the bond which is formed by complete transfer of electron and form compounds
and form compounds. Such compounds are known as ionic compound. Ionic compound और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इस तरह से बने हुए कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएगा बेटा आपका NaCl, KCl, AlCl3 और आप ले ले CaCl2। These are the examples of electrovalent compound, and in these compounds the types of bondings, electrovalent bond is present here और ionic bond is present. Now मेरे प्यारे बच्चों, we will discuss about the dot structure. How can we know? तो देखिए NaCl जो है इसके फॉर्मेशन में एग्जांपल देखेंगे कैसे यह फॉर्म करेगा। तो NaCl के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखिए Na है और Cl है, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे निगेटिव चार्ज होता है। इसको आयोनिक कहने का मतलब इसलिए होता है कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो चार्जेस बनते हैं। तो दो डिफरेंट चार्जेस होने के कारण इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो NaCl के फॉर्मेशन में Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और Cl क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसा हुआ, तो नाउ यू कैन सी हियर Na इसका एटॉमिक नंबर इसका कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका, ये एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 281 होगा। और क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द डॉट स्ट्रक्चर और फॉर टू शो द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए वन वैलेंस, दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आल्सो अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में अगर 1 to 3 रहता है, नाउ इट विल बी लॉस, और 5 to 7 रहेगा तो इट विल बी गेन। तो जो 1 to जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव, जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। नाउ ये क्या करेगा, Na पर एक प्लस है तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख के शो कर सकते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड, दिस इज द आयोनिक बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट आई एम गिविंग वन अनदर एग्जांपल आल्सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। तो आयोनिक बॉन्ड का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका डॉट स्ट्रक्चर और आयोनिक स्ट्रक्चर, हाउ विल यू फॉर्म, हाउ विल वी डू टू show the ionic compound, ionic bond or electrovalent bond, electrovalent bond, ionic bond या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो नाउ आंसर आप लिख ले, दिस सम स्टेप्स दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। वो स्टेप्स क्या होता है आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
to show the ionic bond, to show the ionic bond, we do some following steps. We do some following स्टेप्स। कुछ स्टेप्स को हम लोग करेंगे। वो स्टेप्स क्या होगा? तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग NaCl का लेते हैं। NaCl का एग्जाम्पल मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द, वी विल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स। रेडिकल्स किसको बोलते हैं? तो कंपाउंड्स हैविंग टू parts, each part is known as radical, positive radical and negative radical। मेटल्स जो होता है वो पॉजिटिव रेडिकल्स कहलाता है और नॉन मेटल्स जो होता है वो नेगेटिव रेडिकल्स कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एग्जांपल, फर्स्ट वी शुड नो द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक number of ionic radicals। आयोनिक रेडिकल्स का हम एटॉमिक नंबर जानेंगे। तो यहाँ पर आयोनिक रेडिकल्स का क्या है आपका? तो Na और दूसरा Cl है, इसका एटॉमिक नंबर कितना आपका 11 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 17 है एटॉमिक नंबर। नाउ we go through the electronic configuration of each radical। Now third, find the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता लगाएंगे। नाउ फोर्थ, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, इट विल लॉस, क्या करेगा? इट विल लॉस, लूज करेगा एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूं। एंड इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 7, it will gain and form negative ions। Finally, for making ionic bond, valence electron will participate। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल बॉन्डिंग बनाने में क्या यूज होता है मेरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो इस स्टेप्स को फॉलो करने में आप यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ यू कैन सी वेरी सिंसियरली हाउ कैन यू फॉलो इट, एंड नाउ द एग्जाम्पल और आयनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म। अब एग्जाम्पल मैं लिया किसका? NaCl का। तो पहला स्टेप क्या है? वी शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ आयनिक रेडिकल, एटॉमिक नंबर ऑफ आयोनिक रेडिकल। तो आयोनिक रेडिकल इसमें क्या है? Na है और दूसरा क्या है आपका? Cl। इसका होता है 17, इसका होता है 11 और इसका होता है 17। दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 और 17 है। नाउ
वी विल नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका हम लोग को क्या देखना है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। नाउ वी गो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच रेडिकल। इसका होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसपीडीएफ के बेस पे। तो एसपीडीएफ के बेस पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ होता है फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s, 2 2 4 6 4 तक 3s1। नाउ फर्स्ट सेल कंप्लीटेड है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो गया, 2 8 1 हो गया। और क्लोरीन का फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए फर्स्ट 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो गया मेरा 281 और उसका हो गया 287। नाउ वी विल नो अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर सेल ऑफ outer cell, that is known as valence electron। मेरे प्यारे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी ले लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outer shell of an atom in electronic configuration। in electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है एंड 3s1 दैट इज द लास्ट सेल 3s1। तो ये क्या हो गया 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। नाउ दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये पहला सेल में 2 है, दूसरे सेल में 6 2 8 है और तीसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 7 है। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। नाउ वन थिंग इज मोर मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल होता है। एक्चुअली इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसके आउटर सेल में 2 होता है, इसके आउटर सेल में 8 होता है। यहाँ भी 2 8 8 होता है, यहाँ भी 2 8 18 8 होता है, यहाँ 2 8 18 18 8 होता है, यहाँ 2 8 18 32 18 और 8 होता है। तो आप देखिए सबके आउटर में क्या है 8 है। नाउ ड्यू टू 8 होने के कारण इनर्ट गैस के आउटर सेल में 8 होता है, इसलिए जो भी एटम्स है, जो भी एलिमेंट्स है, जो उसका एटॉमिक नंबर है वो ऑक्टेट। 8 को क्या बोलते हैं हम लोग, 8 को ऑक्टेट बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेट। और 2 इसको बोलते हैं हम लोग डुप्लेट। 8 को ऑक्टेट बोलते हैं, 2 को। तो हीलियम क्या है आपका डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और 8 को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर सेल में अगर 1 2 3 आएगा तो वो लॉस करके इनर्ट गैस के कैरेक्टर को फुलफिल करने की कोशिश करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके 5 to 7 रहता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। सो दैट अब आप यहां Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 Ve और Cl इसका कितना है आपका 287 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरा
सी, अब आप देखिए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है -1e, तो क्या ये 2 8 हो जाएगा? और 2 8 किसका होता है? हीलियम का होता है। तो हीलियम के कैरेक्टर को वो फुलफिल कर लेगा और इस तरह से वो इनर्टनेस को गेन कर लेगा। क्लोरीन के आउटर सेल में अभी आपको बताया था 1 2 3, तो ये लॉस करेगा। यहाँ 5 to 7, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा? तो यहाँ 7 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलता है तो वो क्या बना लेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ ये +1e एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। नाउ ये क्या बन जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 7 एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो 8 हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या करेगा? अपने आप को फुलफिल कर लेगा ऑक्टेट रूल को और स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। तो डॉट स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं हम लोग? डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? नाउ डॉट स्ट्रक्चर, तो Na, तो Na इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना वो ही हम लोग बॉन्डिंग में यूटिलाइज करते हैं। तो ये 2 8 1 था, तो यहाँ पर हम एक क्रॉस का सिंबल दिखा देंगे। क्लोरीन यहाँ पर है, इसके क्या होता है? आपका 2 8 7 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहाँ डॉट दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉट मैंने दिखा दिया। अब इसको क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम ट्रांसफर होते हुए दिखाएंगे। दिस इज ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर हुआ, तो अब क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो Na पर क्या चार्ज आ गया आपका? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, और जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर क्या चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इस पर क्या आ गया? 1 नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज द कंपाउंड NaCl एंड इट इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। चूंकि आयोनिक कंपाउंड इसको बोलेंगे क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है और 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हियर, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आप इस चीज को समझे। हाउ विल यू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड? हाउ विल यू मेक द डॉट स्ट्रक्चर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, you will have to know about the process. How will you do the different structure? This is the ionic compound. Now just I am going to take another example so that you can understand easily. मेरे प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्टेट रूल डुप्लेट रूल को फॉलो कैसे कर रहा है इस चीज को देखें। नाउ डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करें, यू विल अंडरस्टैंड। देखिए एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? एंड इज इट ए आयोनिक कंपाउंड? तो यस, इट इज आयोनिक कंपाउंड। हाउ? बिकॉज हियर डिफरेंट ions are present. Ca it contains the positive charge and chlorine it contains the negative charge, and both different charges are present in a compound that is called ionic compound. So now ये ionic compound है. How will you show the complete transfer of electron and show the dot structure also? So first we will follow the some rules. पहले हम लोग कैल्शियम को ले लें, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? ये 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होगा 2 8 8 2। देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा, बाकी ये 2 8 8 आर्गन का स्ट्रक्चर को गेन कर लगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो और क्लोरीन इसका 2 8 7 अभी हमने देखा, अगर ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये भी 2 8 8 आर्गन के प्रॉपर्टीज को गेन कर लगा। इन दिस वे दे फुलफिल द structure of or character of argon and it will be stabilized, not reactive। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम
ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब बात करते हैं हम लोग CaCl2 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे। तो देखिए CaCl2 है तो कैल्शियम 1 है, इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 2 है, तो 2 पॉजिटिव 2 क्रॉस सिंबल से दिखा दिया हमने। अब क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चूंकि मेरे पास क्लोरीन 2 है इसलिए हमने क्या किया, 2 क्लोरीन को यहाँ पर दिखाया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कैल्शियम और 1 इलेक्ट्रॉन इसको इस क्लोरीन को दे दिया, तो ये 2 8 8 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो Ca पर क्या चार्ज गया आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन पर माइनस, 1 क्लोरीन पर माइनस, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या यहाँ पर Cl2 2 लिख दे और यहाँ पर 1 माइनस चार्ज को दिखा दे, तो 2 बन जा 2, यानी 2 माइनस चार्ज हो गया। एंड दिस इज द आयोनिक कंपाउंड। ये हम either we will show the dot structure and we show the ionic structure. It is known as ionic structure. इसको आप क्या बोलेंगे, आयोनिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉट स्ट्रक्चर। एंड इन दिस वे वी कैन मेक a dot structure or ionic structure of the ionic compound or electrovalent compound. Now once more I am going to discuss, my dear students, so that you can't face any problem, and after that we will discuss the covalent compound. Now AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर और आयनिक स्ट्रक्चर। तो उस रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द डिफरेंट रेडिकल्स। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द डिफरेंट रेडिकल्स, नाउ Al एल्युमिनियम एंड सेकेंड इज क्लोरीन। atomic number of aluminum is 13 and chlorine is 17. Now electronic configuration, तो what is electronic configuration, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 283, इसका क्या हो जाएगा 287। Now how will you show the dot structure and ionic structure? So to show the, तो हम लोगों ने सबसे पहले एटॉमिक नंबर गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। चूंकि लास्ट में सेल 1 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट को पूरा करेगा, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया। नाउ AlCl3 के फॉर्मेशन में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लोरीन कितना है 3 है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन को हमने लिख दिया। एल्युमिनियम कहाँ पर, यहाँ पर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जब भी हम यूज करते हैं तो किसको लेना है हम लोग को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन को नहीं। इट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 3 है, 2 8 3 है आपका, कितना हो गया वैलेंस नंबर 3, तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, इसका कितना होता है 287 और 287। एक्चुअली यहाँ पर 3 क्लोरीन को लेना है तो हम लोग 3 अलग अलग क्लोरीन को लेंगे। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, एक इसको किया और एक इसको किया, तीनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो ये लॉस कितना किया एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम अकेले 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसलिए इस पर 3 प्लस लिखते हैं। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन,
अगर ये तीनों को हम Cl3 लिख देते हैं, ऊपर माइनस लिख देते हैं, तो 3 और 1 माइनस, मतलब 3 1 3 1 जा 3, 3 माइनस हो गया। तो नाउ दिस इज द आयोनिक स्ट्रक्चर, दिस इज द आयोनिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर। In this way we can show the electrovalent bond or covalent bond, and now we solve the different types of problems. My dear students, I think in this class you have understood very well how can you form the electrovalent compound or electrovalent bond, or how can you represent using the dot structure and ionic structure. Now you go through the practice, my dear students. So next time I will discuss about the properties, what is the properties of ionic compound, and the how will you form the different types of covalent compounds. चूंकि ये आयनिक कंपाउंड डिफरेंट चार्जेस से बने होते हैं, और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, and due to different formation of different charges it attract to each other strongly and it cannot separate easily, so it is generally in solid form. When it is in solid form, its melting point is high, boiling point is high, density is high. These are the property of ionic compound. So my dear friends, first of all you go through the making electrovalent bond, taking different examples and do practice. After that, in next class I will show you some different properties of covalent compound and how will you form the covalent compound, also how will you show the dot structure of covalent compound also. Thank you for today's class.